Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine and spending quality time at your home and will be watching learning videos. Today I am going to start a new chapter 6, that is acid, bases and salts, and today's topic is acids. I welcome you to the new science video. You know that this is the month of Holy Ramadan. The Holy Prophet Muhammad ﷺ said, whoever established prayers on the night of Qadr out of sincere faith and hoping for a reward from Allah, then all his previous sins will be forgiven. And whoever fasts in the month of Ramadan out of sincere faith and hoping for a reward from Allah, then all his previous sins will be forgiven. Value of the week is helping others. Helping others is the way we help ourselves. As you know that the whole world is facing the pandemic situation of COVID-19, so we have to follow some instructions like wash your hands for 20 seconds. You don't need to go outside. Whenever you need to go outside, you just wear the mask and rub your hands with hand sanitizers. And whenever you cough or sneeze, you just cover your mouth with elbow. In this video, the main points of acids that we are going to discuss are very helpful. In this video, we will be able to understand the definition of acids, sources of common acids, properties of acids and uses of acids. Now start our discussion about the acids. What are the acids? The word acid is derived from the Latin word acidus, means sour. यानी कि जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका जो टेस्ट है वो सोर होता है, खट्टा होता है, उनको हम एसिड्स का नाम देते हैं, ठीक है। और जो सोर फ्रूट्स हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनका जो जायका होता है, जिनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, वो बिल्कुल सिट्रिक एसिड जो होता है वो उसकी वजह से होता है, क्योंकि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, उसी वजह से उनका जो टेस्ट है वो सोर महसूस होता है। अब अगर हम एसिड्स की डेफिनेशन देखें तो हमें पता चलता है कि एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस हमने वर्ड जो है वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक्वस जो है वर्ड हम स्पेसिफाई यूज़ करते हैं एक्वा के मतलब वाटर के लिए। एसिड्स का अगर पानी के अंदर सॉल्यूशन मौजूद है तो वो पानी में जब डिज़ोल्व होते हैं तो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। यही कैपेसिटी है, यही हम कह सकते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं अपने सॉल्यूशन में, वाटरी सॉल्यूशन में, उनको हम एसिड्स का नाम देते हैं। हाइड्रोजन आयंस जो है वो उनको हम कैपिटल H और उसके ऊपर हम पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं। एज यू कैन सी दैट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन इट इज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एसिड्स, organic acids and mineral acids. As you can see that the sources of the organic acids, apple is the source of malic acid, lemon is the source of citric acid, grape is the source of tartaric acid, tomato is the source of oxalic acid, vinegar is the source of acetic acid and curd is the source of lactic acid. When we talk about the mineral acids, these mineral acids are obtained from the minerals. So these are hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid and carbonic acid, and their formula are given. Hydrochloric acid has formula HCl, sulfuric acid has H2SO4, nitric acid HNO3 and carbonic acid has formula H2CO3. Now let's see the properties of the acids. Acids की बहुत सारी खसूसियात हैं, जिनमें नंबर 1 पे है हमारे पास के जो एसिड्स हैं उनका सोर टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग घरों में जो हाउस होल्ड आइटम्स यूज़ करते हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका सोर टेस्ट होता है, जैसे आप लींबू इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा विनीगर, सिरका जिसे हम कहते हैं, वो आप यूज़ करते हो, उसका भी जो जायका है वो खट्टा महसूस होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो एसिटिक एसिड मौजूद होता है। इसके अब हम देखते हैं इसके अलावा सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब एसिड्स जो हैं ब्लू लिटमस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप सामने ये देख सकते हैं कि आपके पास एक जो है बीकर है, बीकर के अंदर जो है वो एसिड मौजूद है। जब आप जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको डिप करते हो तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कंपाउंड को इंडिकेट कर सकते हो, जो एसिड है वो इंडिकेट होता है कि अगर वो ब्लू लिटमस को रेड कर दे तो वो हमारे पास क्या हो गया, एसिड हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि आपको बताया था डेफिनेशन में कि एसिड्स जो हैं जब पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और यही आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं वो आयंस से मिलकर बनते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एसिड्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लें कि जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं।
एग्ज़ाम्पल हमारे पास है यहाँ पे मैग्नीशियम है, जब ये रिएक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। इस तरह दूसरी एग्जांपल है एल्यूमिनियम का रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि जब एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमेशा प्रोडक्ट आपने याद रखनी है सॉल्ट और वाटर बनता है। बेसिकली एसिड्स की प्रॉपर्टी और बेस की प्रॉपर्टी ये बेसिकली न्यूट्रलाइज हो जाती है बाय द रिएक्शन, तो हम कहते हैं सॉल्ट बनता है जिसका जो बेसिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। वो उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड और बेसिस की, तो वो न्यूट्रल होता है। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन का नाम देते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड्स जब भी रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ, तो आपने याद रखना है कि जब भी एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और जो प्रोडक्ट वो होती है वो है सॉल्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यूजेस देख लेते हैं सॉल्ट्स के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड इथानोइक एसिड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हैं किसी भी मेटल सरफेस को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब भी किसी भी मेटल के ऊपर पेंट करना हो तो उसको पहले साफ़ करने के लिए, ठीक है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं। बेसिकली जो कार बैटरीज़ हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यूज़ किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड को हम फर्टिलाइज़र और प्लास्टिक बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है बेसिकली इसका मेन पर्पज़ ये है कि ये फर्टिलाइज़र्स, खादें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एथेनोइक एसिड जो है उसको हम फूड और जितने भी कुकिंग आइटम्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आई होप जो है एसिड्स के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपको क्लियर हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।